Since very long I wanted to make tattoo, but some or the other thing came into the picture. Sometimes I was very busy, so could not make time for even tattoo also. But finally after many battles, here I am. I'm going to share my experience of making tattoo through this short video. Before we dive in, I want to express my gratitude for your support. I hope the new year is treating you well. Without further ado, let's jump into the world of tattoos. I chose Dazzling Tattoo Studio and I am glad that I chose this tattoo artist. He's very polite and realistic. Let's make you aware of the process a bit. First thing first, they're gonna wipe down the spot where your tattoo is about to go down. Then it is time for a little shave action in that area. And after that, a solid sanitization sesh goes down. Luckily, my tattoo artist was on point with cleanliness, so no worries on my end. But if you are getting inked up, make sure your artist sanitizes all the tools right in front of you because safety first, always. Here, my tattoo artist applied a paste and then carefully placed the paper with the tattoo design on my hand. He gave it a slight rub to transfer that ink into my skin. Because it was my first time, I was literally soaking in everything that is happening in that studio. I was curious about every little detail, like what materials were being used and what is the black tape being wrapped around that cylindrical tool. What is that tool? This ink is called dynamic ink. Okay, this is one of the best ink in tattoo industry. If you Google up, you might find it out. So expiry date of this is 2025, right? If you observe my reaction, here I started panicking a bit. All of a sudden, my heart started beating so fast. So this is the needle. This is called cartridge needle. Cartridge needles. So it is sterilized with ethylene oxide gas. Okay, it's a having expiry of 2027. So it's a fresh needle, unopened. You saw that needle? I mean, who would not panic? And right after the tattoo artist peeled off the needle cover, I thought to myself, let's leave everything and let's go back to home. So, to distract myself from the impending ink action, I started vibing with music in the studio, chewing gum, playing with the chair. Basically, anything to keep the nerves at bay. I won't lie, there were some nerves in the mix. And if you are a first timer like me, you can totally relate with me. I'm going to start. Not much, right? Alright, let me spill the truth here. It didn't hurt me. I mean, I was picturing blood, potential fainting, thoughts of running out in midway. But guess what? It was totally bearable. And I was legit surprised like, wait, that's it? Seriously? Not bad at all. However, if I went for some crazy shades or a bigger tattoo, it might have been a different story. Probably. Maybe I'll try that also some other time. Towards the end, I did start feeling a bit of pain, especially when the tattoo artist was wiping off the blood. But you know what? I was on a mission to get it done, so I powered through without taking a break. Huge shout out to my tattoo artist though. Super generous. Kept checking like need a break, need water, anything like that. Since I could handle it, I pushed through. But it is totally cool to take a break if you need one. And that's a wrap, folks. We're officially done here, and I'm absolutely loving it. The way it's written totally vibes with my personality, and that's exactly what I was going for. Can't even count how many times I have flaunted it in front of the mirror.
because why not? Oh, and guess what? I snagged a cute pic with the adorable kid who happened to be the tattoo artist's son. I was throwing some mad sums his way to keep him engaged in his own little world. I must say, he was very much curious about adding numbers in his mind. And it worked for us. What you should seek. Okay. Alright. मुझे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने हैं स्टार्टिंग विद वाई की गाई. इवन तो मैं स्टूडियो में गई थी एंड आई सेड देखो मुझे ये वाला डिज़ाइन ये टैटू बनाना है, ये थोड़ा बड़ा है बट आई कैन मैनेज. फिर उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन बना के दिया, उन्होंने बोला कि हाँ इतना बड़ा आएगा, ऐसा ऐसा सब कुछ डिसाइड हो गया. उसके बाद मैं वापस घर आई. उस दिन नहीं बनाया था, काफ़ी लेट हो चुका था. तो मैं वापस घर आई एंड आई सर्च्ड इन इंटरनेट, ठीक है, कि क्या एक्सपीरियंस है, मतलब क्या बुरा से बुरा हो सकता है. बिकॉज यू शुड टेक प्रिकॉशंस, राइट. अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, जो कि हुआ नहीं. बट आई वॉन्टेड टू बी 100% श्योर कि इतना पेन होता है और मेरे में उतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं. सॉरी. देन आई थॉट कि यू नो व्हाट, लेट्स नॉट मेक दैट बिग टैटू, पहले सिंपल सा कुछ बनाते. However, I did not want it extreme simple, मतलब कुछ मीनिंगफुल मुझे चाहिए ही. ऐसा नहीं कि फूल बना लिए, पत्ते बना लिए, तितलियाँ बना लिए नहीं. तो मुझे कुछ मीनिंगफुल चाहिए था. आई वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट इकिगाई, सो बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे बनाना चाहिए नहीं. एंड इवन बिफोर दिस बुक वॉज इंट्रोड्यूस टू मी, I was aware of Ikigai. I always used to believe that if it is happening, then it is happening for a reason. ठीक है. If you are here, there is a reason. तुम्हारा कोई ना कोई पर्पज़ है. बहुत छोटे से ही मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती थी, बट दिस बुक पोर्ट्रेड इट इन एक्सट्रीमली वेल वे. ठीक है. तो अगेन इट वर्कड फॉर मी. तो हियर आई एम, हमने बना लिया इकिगाई. नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े थे, कैसे ध्यान रखना पड़ा था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैटू बनने के बाद में आपको बहुत ध्यान रखना पड़े, क्योंकि विथ ऑब्वियस रीजंस वो किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करेगा तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है एंड दैट वुड बी हॉरिबल. नॉर्मली टैटू आर्टिस्ट यहाँ पे कुछ रैप कर देते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअली, बट दे हैव समथिंग, कोई एक मटेरियल वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और वो ईजिली निकलता नहीं है. 1 वीक तक उसको छेड़ना नहीं है, वो वैसे ही रैप रहेगा. एंड डस्ट वगैरह कुछ नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा सोप नहीं जाना चाहिए. ठीक है. तो 1 वीक तक तो यही चलता रहा. जिस दिन मैंने टैटू बनाया था उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद वाले दिन थोड़ा सा पेन कर रहा था. ठीक है. फिर हल्का हल्का ही पेन, दैट वाज बियरेबल. कभी कभी इचिंग भी होती है और इचिंग इज़ समथिंग कि मतलब सहा ही नहीं जा सकता है. मतलब ऐसा मन कर रहा था खुद यार. हाउएवर हमने खुजाया नहीं. एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक अभी भी खून निकल रहा है, इज़ इट फाइन और नॉट. तो मैंने अपने टैटू आर्टिस्ट को दिखाया, देखो ऐसा सिचुएशन है. तो ही वॉज लाइक इट्स फाइन, कुछ दिन तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा. सो आई ट्रस्टेड हिम एंड एक्चुअली उसके बाद नहीं हुआ. नेक्स्ट इज़ कि क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक लगा रहता है ना, तो अंदर में ही यू विल सी लॉट ऑफ क्या बोलते दाने हो जाते, बहुत सारे दाने 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 हो जाएंगे. एंड यू मे फील कि भाई ये इन्फेक्शन हो रहा है क्या, ऐसा. तो ऐसा नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉर्मल कि थोड़े से, क्योंकि वो प्लास्टिक चिपका है तो फिर थोड़े थोड़े दाने आ जाएंगे. बट जब आप प्लास्टिक हटाएंगे उसके बाद it will be normal and you have to avoid sunlight. तो मुझे ट्रैवल करना था. I was being suggested just wrap some cloth or something that will work. What happens after 1 week? ये नहीं है कि हाँ अब टैटू बन गया मतलब अभी कुछ कर सकते हैं, नहीं. प्लास्टिक निकलने के बाद में भी यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. हल्का सा वार्म वाटर एंड कॉटन के थ्रू आपको जस्ट वाइप करना पड़ेगा एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट ऑइंटमेंट. कभी कभी ऐसा लगेगा कि निकल रहा है, टैटू इज़ पीलिंग ऑफ, दैट इज़ फाइन. ठीक है. वो टैटू निकलता नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. एंड थर्ड थिंग इज़ टैटू बनाने के पहले मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाया था एंड आई आस्क्ड कि देखो मैंने टैटू बनाना है मुझे, तो कुछ प्रिकॉशंस अगर आप बता सकते हैं या ऐसा कुछ लेना है एक्सेट्रा. एंड शी सेड ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, वॉट एवर योर टैटू आर्टिस्ट सेज यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट. उन्होंने ये सजेस्ट करा था ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाएं बिफोर टेकिंग दिस स्टेप. It will not harm you, it will just cause some bugs, that's all.
नाउ फोर्थ थिंग, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं टैटू बना रही। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, सिबलिंग को नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। आई जस्ट वेंट एंड मैंने बना लिया। उसके बाद भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोलकाता में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कॉल पे क्या बताना, अभी फिर जाने दो, जब मुलाकात, अभी फिर उसके बाद मैं कोलकाता जाने ही वाली थी। मैंने कहा कि जब मुलाकात होगी तब दिखा देंगे। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कोलकाता गई, मैंने तब भी नहीं बताया। मैंने सोचा अभी वो लोग देखेंगे तो मैं रेस्पॉन्स करूँगी, मैं सामने से नहीं बताऊँगी, डांट पड़ेगी बहुत ज़ोरदार। हाउएवर भैया ने देख लिया एंड हम दोनों हंस रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स किचन में थे, उन तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा ये परमानेंट ही है, टेम्पररी नहीं है। फिर वो भैया कहता है कि एक काम करना, बोलना कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, 4-5 साल टिकेगा। फिर धीरे बोलना ये लाइफ लॉन्ग भी टिक सकता है। ऐसे करके बोल देना। क्योंकि ठंडी का सीज़न था तो फुल स्लीव्स होते हैं, तो उतना किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, किसी ने कुछ देखा नहीं। एंड वन फाइन डे अचानक से मम्मी पूछती है तेरे हाथ में क्या हुआ। आई वॉज लाइक no। अब तो बताना पड़ेगा। इट वॉज लाइक हाँ वो मैंने थोड़ा सा बना लिया टैटू, ऐसे करके मैंने कहा। एंड शी वॉज लाइक टैटू बनाया मतलब टैटू क्यों बनाया, दर्द नहीं करा। आई वॉज लाइक भाई आज तुम मतलब बहुत डांट पड़ने वाली है। फिर मैंने बोला नहीं वो परमानेंट ही है, बट इतना खास कुछ दर्द नहीं देता। पहली बार में थोड़ी बोल देंगे हाँ थोड़ा सा दर्द दिया, मम्मी तो और डांटेगी। तो मैंने बोला नहीं बिल्कुल खास कुछ दर्द नहीं, वो थोड़ा बहुत तो होता है। फिर मम्मी वैसे लाइक और भी बनाइए क्या। ऐसे नहीं और नहीं बनाई, बस ये शौक था बना दिया। लाइक ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ, मम्मी एकदम ऐसे घूर रही है मेरे को। आई वाज लाइक निपट जाए सिचुएशन, निपट जाए बस। बट एनीवे ये हुआ। फिर पापा बीइंग पापा, उनका ध्यान फिर भी नहीं पड़ा। अगर मैं दिखा भी देती ना पापा को हाँ पापा टैटू बनाए, आई वाज लाइक उनके दिमाग में चल रहा है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो उनका सॉर्टेड था। फिर मैं अपनी मासी के यहाँ पे गई। मेरी मासी की मदर इन लॉ, हम उसको थम्मा कहते हैं, वो काफ़ी एजेड है राइट। उन्होंने देखा कि ये क्या बनाई है तू। आई वाज लाइक अरे इनके नज़र में पड़ गया। तो मैंने कहा हाँ वो टैटू है। उसके बाद सब देख लिए कि हाँ टैटू है। फिर मेरी बहन काफ़ी एक्साइटेड, तो टैटू बनाई है, दिखा ऐसे करके। इट्स लाइक हाँ थोड़ा सा दर्द दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बस बोली बस निपट जाए सिचुएशन। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। हम लोग उनके घर खाने पे गए तो मैंने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, ये बोल के स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही, क्या बन रहा है। तो इट वॉज लाइक दैट। ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद में इनिशियल रिएक्शन उनका सब नॉर्मलाइज हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बोला कि अच्छा क्या हुआ था। एक्चुअली टीवी में ऐड चल रहा था, तो वहाँ से हमारा कॉन्वर्सेशन चालू हुआ। मम्मी कहती अच्छा ऐसे ही बनवाया था तूने भी, ऐसे ही पिन करके। मैंने बोला हाँ ऐसे ही थोड़ा सा दर्द देता है बट इट्स फाइन। एंड तब पापा सडनली अच्छा दर्द दिया था ओके, तब पापा अटेंशन दिए इस मैटर पे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि बेसिकली वो थोड़ा पिन करते हैं पूरा बनने तक ब्लैक इंक से, ऐसा वैसा, तो दर्द देता है, कई लोग फेंट हो जाते हैं। एंड दे वर लाइक तो फेंट हो गई थी, लेकिन नहीं इतना आई नो कि मैं फेंट वेंट नहीं हो सकती क्योंकि है मेरे पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ टच। मैंने एक्सप्लेन किया क्या हुआ था। फिर मम्मी कहती है तूने ये कब बनाया, सच बताओ। मैंने बोला अरे रिसेंटली बनाया, अभी बहुत पहले नहीं बनाया मैंने। नहीं तूने कब बनाया पहले बता, तू इसके पहले भी बना चुकी हो कि हमको दिखाई नहीं, अब दिखा। तो मैंने कहा नहीं मम्मा सच में मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया। तो उसके बाद में उनको ट्रस्ट इशू हो गए मेरे पे कि तू झूठ बोल रही है। मेरी मम्मी बेचारी इतना कोशिश कर रही थी कि मेरे पे विश्वास करे, बट उनको हो ही नहीं रहा था। फिर आफ्टर दैट एवरीथिंग हैपेंड एंड आई वाज लाइक सच्ची में अभी रिसेंटली बनाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो दैट्स हाउ पूरा सिचुएशन था। थोड़ा फनी था, स्कैरी था, बट इट वाज नाइस। तो एक्चुअली मम्मी को थोड़ा बहुत पता था कि मेरे कुछ वियर्ड शौक है। शायद वो एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ ये करने को कर भी सकती है। सो दैट्स हाउ इट वेंट। आफ्टर सम टाइम आई मे मेक
few more tattoo, एकदम ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 और प्रोबेबली एट दैट टाइम अगर ऐसा हुआ और वो इतना सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है अब इतना दर्द मुझे नहीं देता है, तो आई कैन गो फॉर लिटिल बिगर वन, जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था बिफोर दिस. मे बी आई मेक अनदर टैटू, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, अगर मन किया तो अगेन. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्नी and yeah, I love it. So yeah, that's all. See you soon. Bye bye.